amongst each other is because we are waiting for Mr. Anup Jalota to join us. हमारे बड़े पुराने मित्र अनूप जलोटा साहब भजन सम्राट जिनको कहा जाता है. I don't think he's just bhajan samrat. I think he's possibly one of the best classical singers as well. He sings semi-classical, but he's been trained as a classical singer. He's the son of Purushottam Das Jalota ji, and the kind of voice he's got is absolutely fantastic. Pradeep ji, if you remember, when Anup Jalota started, everybody used to say that this man possibly will become the best ghazal singer in India. I don't know why he left ghazals and he decided to go towards bhajan. Maybe bhakti sangeet की तरफ चले गए. तो मतलब बिल्कुल सर. No, even now he believes that bhajans 50% of the music industry revenues are taken over by bhajans. Yes, but he's the guy who made bhajans respectable. If you look at it, yes sir, yes. पहले जितने भी भजन सिंगर होते थे वो भजन मंडली के होते थे. अनूप जलोटा साहब के आने के बाद bhajans have become fantastic. Yes. If you notice all the great playback singers, they would sing bhajans too. I mean, my own favorite bhajan is the one sung by Mohammed Rafi. I think yours too. मंतर पर हरि दर्शन को आज क्या गाया रफी साहब ने. मतलब शकील साहब ने लिखा, शकील बदायूनी और म्यूजिक है नौशाद साहब का. But it's absolutely fantastic. I mean, there's nothing like a beautiful bhajan. Nothing like a bhajan sung beautifully. His father was a great singer, bhajan singer too, Purushottam Jalota ji. ये पुरुषोत्तम दास जलोटा जी, I still remember I interviewed him just at the time when पुरुषोत्तम दास जी got the Padma Shri. अब मुझे याद है उस वक्त आप भी थे साथ में, सारा बिल्कुल. और वो I think गणपति विसर्जन चल रहा था उस दिन, शायद विसर्जन का दिन था. और उन्होंने जो गणपति की स्तुतियां सुनाई थी, मतलब मुझे अभी तक याद है. I wish we could get that footage from somewhere. It was absolutely fantastic. नारीबन पॉइंट का जो हमारा स्टूडियो होता था वहाँ पर उनका इंटरव्यू किया गया था. And it was really fantastic. It was really beautiful. We done it. And the way Anup Jalota ji has not left it. I mean, he's still there. He's continued the legacy. He's still continued the legacy. I remember Purushottam Jalota talking to you, says जब मेरे concentration और passion यही है कि जब भी मैं भजन गाता हूँ, मैं समझता हूँ कि I am with the gods and I am singing it for the gods. Yes. So the quality and everything is maintained in even every singing that he takes place. He believes that he's singing it for the gods. और प्रदीप जी आपको याद होगा, पता नहीं आपको याद है कि नहीं है कि अनूप जलोटा साहब और पंडित जसराज जी इकट्ठे बैठे थे हमारे साथ होटल ऑर्किड में. वहाँ का जो रेस्टोरेंट है वो क्या, बिल्कुल. अब मुझे याद नहीं क्या नाम है यार उस रेस्टोरेंट का. वो नीचे जो है दैट्स अ लवली साउथ इंडियन रेस्टोरेंट. और वहाँ बैठ करके जो दोनों ने माहौल बनाया, मतलब मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. आई जस्ट हैड टू सिट बड़े आराम से. Yes. I just had to sit and watch them. I saw two maestros talking to each other and bouncing things off each other. Of course. Do you remember Medha ji उनकी मुंह बोली बेटी थी पंडित जसराज जी की. तो पंडित जसराज जी हमेशा उनको हमारे जवाई बाबू बोलते थे, अपने अनूप जलोटा जी. Okay. And the way they sang, oh my God, it was like beautiful. मतलब even now I still have that show, by the way. That's on YouTube and people can watch it. It's on the RKB show. Just type out Anup Jalota with and Pandit Jasraj on the RKB show and you'll be able to see it. It's absolutely fantastic. It's so beautiful. I mean, I don't know where to begin and where to end. It's so beautiful. I just sat there mesmerized between these two doyens of singing. Maestros. बिल्कुल सर. मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला कि वो इवनिंग थी. और पंडित जसराज जी ने बाद में बोला, यार आरके भी तुम तो साले जादूगर हो. साले नहीं बोला, सॉरी, माफ कीजिएगा पंडित जी, आप जहाँ भी हैं जरा माफ करें मुझे. तो उन्होंने कहा, यार तुम तो जादूगर हो, तुम तो रेस्टोरेंट में गवा दिया. वो काली माँ का अडाना गा रहे थे. तो उसने कहा, यार मैं गाने के बाद मैं सोच रहा हूँ मैं गा कहाँ पे रहा हूँ, कॉफी पीते पीते. I mean, it was so beautiful. And these are the kind of things that one usually doesn't get. We are trying to get him connected. I think he's in Dubai. There the network is fantastic. I don't think we should have a problem with the network. So maybe. बिल्कुल नहीं होना चाहिए. Do we have Mr. Anup Jalota with us? Okay, I think he'll be connected within 2 minutes. That's what we've been told. So within 2 minutes we shall have Anup Jalota over here with us for the first time on Nation Now, and that I think would be fantastic. Really and truly lovely. बिल्कुल. मतलब बिल्कुल. मैं आपको बता दूं कि बाकी सब गायकी ठीक है, मतलब लोक गायकी जैसी भी होती है. देखिए साहब, शास्त्रीय गायन है, बाकी सब गायकी है, लेकिन जैसा अभी प्रदीप जी ने कहा कि
अगर कोई खूबसूरत भजन खूबसूरती से गाया जाए, उस जैसी कोई चीज़ नहीं है। मतलब इट इज़ सो ब्यूटीफुल कि आप मतलब जितनी बार उसको सुने वो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे वो उनका जो मीरा का जो भजन है, अपने द मोस्ट फेमस भजन ऑफ अनूप जलोटा जी, मीरा हो लागी गई लागी मगन, लगन, जय यस ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। मतलब वो तो कोई बच्चे बच्चे के मुंह के ऊपर था साहब, और अभी भी है, यस बिल्कुल, आप देखें। यस यस और यस। वो क्या है, वो कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव यस चढ़े। एक से एक सर, जो स्पिरिचुअल आप भजन की बात करोगे तो एवरीबॉडी नोज ओनली वन थिंग, दैट वन इज अनूप ओनली वन जलोटा। नेम, सिर्फ एक ही नाम वन आता है नेम, सर। बिल्कुल सर, सर आई मीन एक ही देयर इज नाम नो, आता है, हर जगह पर सिर्फ एक यस ही नाम आता है, यानी अनूप जलोटा। और कोई नाम ही नहीं एग्जैक्टली, है, दूर दूर तक नहीं है, और पूरी दुनिया में, सिर्फ यहीं पर नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, वो जहाँ भी जाते हैं, भले अमेरिका हो, भले यूरोप हो, भले यूके हो, भले जो जो मर्जी मुल्क हो, वहाँ पर अनूप जलोटा, अरे बाप रे बाप, द वन, व्हाट अ फैन फॉलोइंग द मैन अमेजिंग, हैज, and the kind of modesty that he has. Oh God, he's a very humble person, very modest. He's the kind of person that you एंड can you can talk about forever. That's the kind of guy he is. एंड ही ऑलवेज टेल द पीपल, देखो सुनिए, मैं गायक हूँ, मैं संत नहीं हूँ, सो डोंट ट्रीट मी लाइक अ सेंट, आई एम Yes. नॉट अ संत। No, he's not. No, he's not. No. He's not. He's not. He's lived through bad times too. He's lived through a यस lot of struggles, यस and यस so यस, he's lived through his wife's illness. She had a heart transplant and a kidney transplant, and then finally she died of renal failure. So he's a he. He's the kind of guy who doesn't show it on his face. He's always smiling, बिल्कुल, यस always यस usually यस, smiling and stuff like that. I hope we get him. I hope we are able to get him. We've talked about him so much. We've built up to such an extent. I hope we just don't have to say goodbye right now. Uh, but that would be terrible. That would be absolutely terrible. I hope we are able to get him. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि भाई आप देखो, और उन्होंने पिक्चर भी बनाई है। आई थिंक अनूप हैज प्रोड्यूस्ड अ फ्यू मूवीज आल्सो, इफ आई एम बिल्कुल नॉट बिल्कुल, मिस्टेकन। और अभी तो कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर उनका कोई प्रोग्राम भी आने वाला है, अनूप जलोटा साहब यस का। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। So he's He had got some recent awards, I think Academy पुरस्कार मिले थे, जी, he was very happy about it. and but And what I'm surprised at, he's only got a Padma Shri up till now. At least he should have got a yes, Padma Bhushan or a Padma Vibhushan. मतलब आप देखें confident, कैसे अजीबो गरीब लोगों को पद्मा भूषण और विभूषण मिल गया कांग्रेस की सरकार के दौरान। हमारे ही अपने yes कलीग yes हैं, yes जर्नलिस्टिक कलीग जो हैं, किस किस को पद्मा भूषण मिला हुआ है, आप खुद जानते हैं yes, प्रदीप जी, उसका नाम नहीं बिल्कुल लेना चाहता बिल्कुल मैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब आप उनको The way पद्मा, मतलब उनका जिस जो ब्यूटीफुल भजन, हाँ, जो भजन से एक याद आता है, you know, it's amazing, जो भजन के जो गाने के रीति थे, स्टाइल थे, जी, आई मीन जो एक से एक, चाहे वो कृष्ण भजन हो, भले राम राम का का हो, भजन हो, मीरा का हो, यस यस आई मीन, और गणपति, और वो जो है जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, यस यस माता यस, जाकी पार्वती पिता महादेवा। मतलब वैसा किसी और ने गाया ही नहीं है साहब। भले लोग आकर के मुझे जो मर्जी कहते हैं, बट माई फेवरेट वर्जन ऑफ दैट भजन इज बाय अनूप as you जलोटा। told, yes, as you told earlier, लागी लगन, ऐसी oh लागी God, लगन that जनाब, वो is, तो I say मतलब yes yes, वो तो उसका it's तो कोई मुकाबला ही नहीं unbeatable, है, कोई मुकाबला और नहीं है। बिल्कुल 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 सर, yes, और आई थिंक वी गॉट मिस्टर अनूप जलोटा विद अस। अनूप जी नमस्कार। नमस्कार, बड़े दिन बाद देख रहा हूँ आपको। नमस्कार सर, और प्रदीप जी भी मेरे साथ हैं, एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी। नमस्कार। आप सर दुबई से हैं, अभी दुबई में हैं, प्रदीप जी कोलंबो में हैं, मैं अकेला यहाँ मुंबई में बैठा हूँ। मैं भी दुबई में हूँ और बड़ा मजा आ रहा है दुबई में प्रोग्राम करके। क्या माशाल्लाह, क्या बात है सर। और प्रदीप जी देखिए, शक्ल देखिए अनूप जी की, बहुत हमेशा एकदम मुस्कुराते हुए, हमेशा, व्हाट अ ग्लो ऑन हिज फेस। अरे यार मजा आ गया, exactly sir, yes फैंटास्टिक, yes, एब्सोल्युटली बिल्कुल फैंटास्टिक, बिल्कुल रियली एंड बिल्कुल ट्रूली बिल्कुल, फैंटास्टिक। अनूप जी शुक्रिया सर, शुक्रिया। अनूप जी सर ये बताएं, आप जहां पर भी जाते हैं इतनी एडुलेशन मिलती है, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है आपकी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन के बाद अगर किसी शख्स को जाना जाता है मीडिया, मतलब म्यूजिक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, वो अनूप जलोटा है और कोई नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर। देखिए तो ये मैं आप आपको ये जानना चाह रहा हूं कि आप अपने पैर जमीन पर कैसे रखते हैं, ये तो बता दो। देखिए, ये आपका बड़प्पन है। मैं आपको बताऊं क्या हाल हो गया है कि अभी जो मेरा लास्ट वीक
एक सिडनी में कॉन्सर्ट था ऑस्ट्रेलिया में, तो बड़ा अच्छा ऑडियंस था, लोग सुन रहे थे। तो फर्स्ट रो में एक लेडी बैठी हुई थी जी। और उनकी गोदी में एक बच्चा था और वो बच्चा रोता ही जा रहा था। मैं गाता जा रहा था, वो रोता जा रहा था। तो मैंने थोड़ी देर में कहा, बहन जी इसको चुप करा दीजिए। तो वो बोली, ये भी यही कह रहा है। Look at him. I told you he is the most modest guy I've ever met. मुझे अभी तक याद है प्रदीप जी, जो मैं आपको बात बता रहा था। बिल्कुल, अरे वो ऑर्किड होटल में पंडित जसराज जी और अनूप जलोटा साहब का जो शो है, अरे बाप, उसको जितनी मर्जी बात देखो, जितनी मर्जी बार देखो, वही कम है। मतलब वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल। और आखिर में जो पंडित जी ने जो वो गाया अपना काली माँ का जो अडाना है, जो उन्होंने क्या गाया, बात, और उसके बाद जब उन्होंने खत्म किया तो ये कहा कि यार ये तुमने मुझे कहाँ गवा दिया। मतलब ये मुझे तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि रेस्टोरेंट में बैठ के गवा दिया। इट वाज सो ब्यूटीफुल। लेकिन अनूप जलोटा साहब, आप ये बताएं कि अमंगस्ट ऑल योर भजन्स जितने भी हैं, भाई हर एक का अपना अपना फेवरेट होता है। मेरा तो प्रदीप जी का है ऐसी लागी लगन, मेरा है कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था कि नहीं जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े, वो मेरा फेवरेट है। आपका खुद का कौन सा है? मेरा भी वही है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। क्या बात है साहब, क्या बात है, क्या बात है साहब, क्या बात है। और सर, क्या और बात सर है, वो जो- वंडरफुल। प्रदीप जी एक सेकंड, मैं ये पूछना चाह रहा Yes, था कि सम्माननीय आदरणीय पुरुषोत्तम दास जी जलोटा, जब उनको पद्मश्री मिला, मेरा सौभाग्य था कि वो मेरे शो में आए। गणपति का वक्त था उस वक्त, आई इंटरव्यूड हिम। आप सर ये बताएं कि आपका गाया हुआ उनका कौन सा फेवरेट भजन था? उनका एक गाना जो मैं हर जगह गाता हूं, चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, ये मैं हर जगह गाता हूँ। क्या बात है। और उनका आशीर्वाद है जो मुझे क्या बात हर है, जगह में। क्या बात है। व्हाट अ वंडरफुल मैन, रियली एंड ट्रूली वंडरफुल। ये प्रदीप जी आप कुछ पूछ रहे थे। अनूप जी, आपका जो रंग दे चुनरिया वो जो गाते हो, लोग तो पागल हो जाते हो। जो शुरुआत में आप जब राग लगाते हो, रंग दे चुनरिया, ओहो, लोग एकदम एकदम अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, उसमें एकदम वील हो जाते हैं। जो आप शुरुआत जो करते हो वो बहुत 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 प्यारा है। Beautiful, absolutely beautiful. Sir, but how do you maintain your voice? Are there any exercises that you do? अभी रियाज तो करते ही होंगे आप, लेकिन उसके अलावा how do you preserve your voice, sir? देखिए, खाने पीने में तो किसी चीज का परहेज नहीं करता हूँ। वो तो मैंने देखा है। केवल ठंडा नहीं लेता, जैसे आइसक्रीम है या आइस है, ये चीजें नहीं लेता। और स्मोकिंग नहीं करता हूँ, कोई टोबैको च्यूइंग नहीं है। बाकी खाने पीने में तो साहब अचार तो चाहिए ही चाहिए। वाह, बढ़िया अचार, अच्छे मसाले चाहिए। क्या बात है। अच्छा, मसालों पे एक चीज याद आ गई, आपको सुना दूं। एक आदमी एयरपोर्ट में मिला मुझे, तो उससे थोड़ी बातचीत शुरू हुई। तो थोड़ी देर में मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो कहता, मेरा नाम है मिर्ची कृष्णा। मैंने कहा, ये कैसा नाम हुआ? हाँ, मैंने कहा, ये क्या मिर्ची कृष्णा? तो वो कहता, क्यों, अगर हल्दीराम हो सकता है तो मिर्ची कृष्णा भी हो सकता सर, लेकिन एक चीज है, एक तो ऐसी लागी लगन जो है वो तो दैट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। लेकिन जो गणपति के लिए आपने गाया है, अरे बाप रे बाप, मतलब वो तो सर, उसकी अगर 2 लाइन सुना दें तो आई वुड लव इट। आई मीन, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा, लड्डुअन को भोग लगे
संत करे सेवा, जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। गणपति बप्पा मोरया। मोरया। सर आप ये बताएं, यू आर फ्रॉम दी श्याम चौरासी घराना ऑफ पंजाब। या उसके बारे में कुछ जरा बताएंगे, हमारे दर्शकों को मालूम नहीं है उसके बारे में। श्याम चौरासी श्याम चौरासी घराना, श्याम चौरासी देखिए अलग अलग घराना है संगीत के। किराना घराना है, जयपुर घराना है, तो ये हमारा श्याम चौरासी घराना है जो पंजाब का घराना है। हमारे यहाँ के अच्छे अच्छे सिंगर्स जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान चले गए, जिनमें नज़ाकत अली, सलामत अली भी है, वो भी हमारे घराने के। जी। हमारे पिताजी उसी घराने के हैं, वो इंडिया में रहे तो उन्होंने मुझे सिखाया और मैं श्याम चौरासी घराने का ही सिंगर हूँ, जबकि मुझे क्लासिकल आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन मैं घराने का सिंगर हूँ। Now he's being modest again. Now he's being modest again. Now he's being modest again. I've heard you sing classical, sir. क्या बात करते हैं? ऐसा मत भूलिए सर, सबको मालूम है कि आप असल में किस तरह के हैं और कैसे आप गाते हैं, सबको मालूम है। ये तो पता नहीं क्यों आपने छोड़ दिया। आपने सर गजल गायकी भी इतनी ब्यूटीफुल करी है, वो क्यों छोड़ दिया आपने, ये तो जरा बताएं। देखिए ऐसा है कि गजल से ज्यादा स्कोप भजन में है। हमारे देश की 70% जनता गांव में रहती है, वो भजन ही सुनते हैं जी, वो फोक सुनते हैं, रामकृष्ण को उनको सुनते हैं। तो हमने जो वाइडर ऑडियंस हमको देखा कि जो हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भजन में कर रहे हैं जी। गजल की ऑडियंस शहरों में है, गांव में कम है। तो मुझे जो एक्सेप्टेंस भजन का इतना ज्यादा मिला, और ये भी सच है कि मैं भजन जो है वो गजल से ज्यादा अच्छा गाता हूँ, तो मुझे उसमें एक्सेप्टेंस ज्यादा मिला है और मैं उसका मजा ले रहा हूँ, खूब गा रहा हूँ। कुछ भी गाओ, जो मन को लगे वो गाना अच्छा है बस। जी, जबरदस्त। सर आपके जलोटा साहब, आपके फॉलोअर्स जितने हैं, जो आपके चाहने वाले बोलते कि जलोटा साहब अच्छा होगा क्रिकेट खेलने नहीं गए, बिकॉज़ क्रिकेट में आपको बहुत दिलचस्पी था, यू नो, प्लेइंग क्रिकेट वाज अ ग्रेट पैशन फॉर यू टू, तो लकीली यू डिडंट गो दैट साइड, यू नो। And at the moment he must be very depressed. And at the moment he must be very depressed, like all of us. अभी तो सारी दुनिया डिप्रेशन में है सर। मतलब ये क्या हो गया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल क्या कर दिया हम लोगों ने, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। एक अजिंक्य रहाणे बेचारा खड़ा रहा, बाकी सब क्या बताएं सर। और सबको आप बार बार बोलते रहते हो फॉलोअर्स को, लुक मैं एक सिंगर हूं, मैं गायक हूं, मैं संत नहीं हूं। सर ये क्यों बोलते रहते हो आप सबको? यू आर नॉट अ सेंट, यू आर अ सिंगर। मैं आपको बताता हूं, मैं बिल्कुल नॉर्मल पर्सन हूं। होता क्या है कि हम जितनी जगह जाते हैं, हम जितनी जगह प्रोग्राम करने जाते हैं, तो वो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी ये तो बाद में घास फूस खाएंगे, तो वेजिटेरियन खाएंगे, फलों के टोकरे ले आते हैं, लिए जो फल खाइए। तो मैं उनको कहता है यार मैं बिल्कुल तुम लोगों जैसा हूँ, भजन आपको अगर मेरा पसंद आ रहा है, इसका मतलब है कि मैं भजन ठीक से गा रहा हूँ, लेकिन मैं साधु संत नहीं हूँ। साधु संत तो बहुत ही आदरणीय श्रेणी है, वो लोग अपना जीवन जो है पूरा त्याग कर इसमें लगाते हैं। हमने कोई त्यागा ही नहीं, हम तो सब खाते पीते मौज करने वाले आदमी हैं और ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जब कोई काम करते हैं तो उसको पूरी श्रद्धा से करते हैं, तो लोगों को उसमें असर नजर आता है और वो हमको वो इमेज अपनी दे देते हैं, अपने हिसाब से बना लेते हैं कि इनके हाथ में एक कमंडल होना चाहिए, एक धोती पहनी हुई होनी चाहिए और हिमालय की ओर ये जा रहे होने चाहिए भजन गाते हुए। लेकिन सर आपकी इमेज भी तो ऐसी बन गई है ना। प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप कोई भजन गाते हैं और साथ में इतने प्यार से आप जो समझाते हैं, उसका जो अर्थ समझाते हैं, और साथ में एक एक शब्द का जो आप जो खेलते हैं उसके साथ, उससे लोगों को यही लगता है कि अनूप जलोटा साहब जो हैं वो असल में संत अनूप जलोटा हैं। सीधी बात है। ये इमेज लोग बना लेते हैं अपने मन से, तो कोई बात नहीं। मैं कहता यार तुम लोग बनाओ जो इमेज है, मैं तो जो हूँ सो हूँ यार, ऐसे ही रहता। लेकिन सर अभी OTT प्लेटफॉर्म ऑल्सो, आई थिंक you're going on the OTT platform, you're on a program on the OTT platform. Is it a series? What are you doing sir, अनूप जलोटा साहब? देखिए काफ़ी चीज़ें हो रही हैं जो OTT पे आएंगे। जैसे मेरे एक प्रोग्राम कुछ रामायण के ऊपर भी बन रहा है, उसमें काम कर रहा हूँ। कुछ हम वेब सीरीज़ बना रहे हैं, प्रोड्यूस करता हूँ, वो हो रहा है। कुछ योगा पर भी बना रहे हैं, क्योंकि मैं पिछले 55 साल से
योगासन करता हूँ, उसके नए नए जो प्रयोग हैं जो लोगों को बहुत असर करेंगे वो करता हूँ, वो लोगों को बताना चाहता हूँ कि नाउ आई एम 70 और 70 इयर्स की एज में मैं आज भी महीने के 20 प्रोग्राम करता हूँ। मैं सोचिए जरा कि सारी दुनिया घूम रहा। पिछले हफ्ते मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में था, वहाँ से मैं इंग्लैंड चला गया, इंग्लैंड, जर्मनी, हॉलैंड, आज दुबई आ गया। तो ये तभी हो सकता है जब आप सच में अंदर से पूरी तरह शक्ति से भरपूर हो। केवल डोले शोले बना लेने से, जिम में जाने से उसको शक्ति नहीं कहते। बॉडी, माइंड और सोल तीनों की शक्ति अगर आपकी ठीक है तो आप शक्तिशाली हैं। नहीं तो सिर्फ जिम जाने से शक्तिशाली, वहाँ तो कितनों की मृत्यु हो जाती है ट्रेडमिल पे खड़े खड़े, उसको शक्ति नहीं कहते। अगर शक्ति अपनी बनानी है तो आप बॉडी के साथ साथ माइंड और सोल को भी शक्ति दें, उसको भी खुराक दें। और उसको क्या खुराक चाहिए? उसको प्राणायाम चाहिए, उसको आपके समाधि अवस्था चाहिए, उसको जलनीति चाहिए, कुंजल चाहिए, नए नए योगासन के जो आसन है वो चाहिए। अगर ये सब आप करेंगे तभी आप अपने शरीर को कह सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, नहीं तो नहीं कह सकते। अच्छा सर, ये बताएं, जहाँ तक आपका प्रश्न है, यू हैड प्रोड्यूस्ड अ फ्यू फिल्म्स आल्सो, इजंट इट? हाँ हाँ, क्या जी, and really lovely. Are you still interested in producing more films? No, I don't have a script. I'm not trying to pitch for a film for myself, but नहीं, हमारी तो एक शूटिंग चल रही है। वंडरफुल। शूटिंग इज ऑन। वेब सीरीज अमेजोन के लिए उसकी शूटिंग चल रही है आजकल। जौनपुर में शूटिंग चल रही है, बनारस के पास। तो दुबई से मैं सीधी फ्लाइट बनारस की ले रहा हूँ, क्या वहां से शूटिंग हो रहा है। तो इतनी मतलब सर 20 प्रोग्राम एक महीने में, उसके अलावा शूटिंग भी चल रही है, उसके अलावा योगा का भी प्रोग्राम है, उसके अलावा रामायण के ऊपर भी कुछ कर रहे हैं। तो मतलब आजकल सोना वोना नहीं होता क्या? मतलब सोते नहीं? आप भूल गए जी, एक चीज आप भूल गए कि इसके ऊपर आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ जी। यस, तो क्या जलोटा साहब, सर प्रदीप जी, सवाल का जवाब तो देने दीजिए ना कि आजकल सोते नहीं है क्या सर? नींद नहीं आता? सच में नहीं सोता हूँ, बहुत कम सोता हूँ। मतलब मोदी जी की तरह 2 घंटे सोते हैं आप बस? दैट्स इट? सोने का प्रोग्राम बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, लेकिन वो अगले जन्म में। अगले जन्म में? क्या बात है, वंडरफुल। प्रदीप जी कुछ पूछ रहे थे? जलोटा साहब, आपके चाहने वाले में से मेजॉरिटी यूथ है, यंग जो लोग है। तो आप जितने राम के भजन गाए, कृष्ण जी के भजन गाए, गणेश जी के भजन गाए, आपके लिए इंस्पिरेशन कौन सा लीडरशिप के हिसाब से अपने जीवन में उसको रचनात्मक तरीके से लेना, लीडरशिप कौन सा इंस्पायर हुआ? भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, या व्हाट इंस्पायर्ड यू? तो जो देख रहे दर्शक हमारे, उस पर इंस्पिरेशन, जैसे आप हमेशा थकते नहीं, हमेशा मुस्कान रहते हैं आपके इतने काम के बावजूद, तो कोई इंस्पिरेशन तो होगा, कोई लीडरशिप आपका होगा, कोई इन देवताओं में कोई लीडरशिप है आपका, स्किल्स प्रेरणा देने वाले? उनका एक ही नाम है और वो है भगवान कृष्ण। क्या बात है सर। भगवान कृष्ण आपको लिबर्टी देते हैं कि आप उनको चोर भी कह सकते हैं। आप उनके साथ जो चीरहरण, जितने भी गोपियों के साथ रासलीला है, ये सारी चीज़ों का आप उनके साथ जिक्र कर सकते हैं, आप भजन में गा सकते हैं। आप उनको माखन चोर कह सकते हैं, आप उनको रणछोड़ कह सकते हैं। भगवान राम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, आप उनके साथ नृत्य नहीं कर सकते, कृष्ण के साथ आप डांस कर सकते। तो इसलिए कृष्ण हमें इतनी ज़्यादा लिबर्टी देते हैं उनके बारे में गाने के लिए, बात करने के लिए, कि मेरे जो इष्ट देव हैं वो कृष्ण हैं मेरे संगीत के, और मैं उनको ही सोचता हूँ, उन्हीं की रचना करता हूँ, उन्हीं पे गाता हूँ। मेरे ख्याल से उनसे अच्छे म्यूजिशियन भी दूसरे नहीं जी। क्या तो वो बांसुरी बजाते हैं, क्या डांस करते हैं। तो हमारे लिए तो भगवान कृष्ण जो हैं वही हमारी इंस्पिरेशन है। हम अपने गुरु, अपने पिताजी का ध्यान करते हैं और कृष्ण का ध्यान करते हैं। अनूप जलोटा जी, कृष्ण के ऊपर कुछ अगर सुना दे। हाँ सुनिए प्लीज। वो काला एक बांसुरी वाला सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, माखन चोर जो नंद किशोर वो कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी मोरी, वो काला
एक बांसुरी वाला। क्या बात है सर, क्या बात है, जय श्री कृष्ण, क्या बात है, जय जबरदस्त श्री कृष्ण। जबरदस्त जबरदस्त, एब्सोल्युटली वंडरफुल। सर, इज देयर समथिंग दैट यू वुड लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स, हमारे जो यंग व्यूअर्स हैं, जो आपकी ओर देखते हैं प्रेरणा के लिए, जो प्रोत्साहित होते हैं आपसे, आप उनको कुछ बताना चाहेंगे जीवन के बारे में, कैसे जिया जाए, क्या किया जाए? मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूं कि आप वही काम करें जो आपको अच्छा लग रहा है। आप कोई ऐसा काम न करें, किसी ऐसे शख्स से न मिले जो आपको अच्छा न लगता हो। आप उससे मिलिए जिससे मिलकर आपको आनंद आता हो। आप वो खाना खाइए जो आपको पसंद है, किसी के कहने पर मत खाइए। मैं तो आपको बताऊं जी, कि मैं जब किसी के घर जाता हूं, कोई मुझे इनवाइट करता है कि खाना खाने आइए, तो मैं उनको बता देता हूं मैं ये खाऊंगा, तो मुझे मजा आएगा ना। जी, जब मैं किसी को इनवाइट करता हूं तो उससे पूछ लेता हूं, यार तुमको पसंद क्या है, तुमको खाने को क्या पसंद है, तो मैं जिसको इनवाइट करता हूं उसके हिसाब का खाना बना लेता हूं। ये बहुत जरूरी है कि आप किसी को बुलाएं और उसको वो खिलाएं जो आपको पसंद है। अरे ये कौन सा तरीका हुआ भाई? वंडरफुल। सर, जलोटा साहब, जलोटा जी, यूथ प्रदीप यूथ जी, के लिए पूछिए, एक प्रश्न, ये स्पेशली यूथ के लिए प्रश्न है कि देखो सर, एकदम सक्सेस आ जाता है, जैसे आप सक्सेसफुल हो टोटल, मगर आप में कोई अहंकार नहीं, बट सक्सेस में अहंकार आ जाता है, टोटल अहंकार आ जाता है, और हार में टोटल डिस्पोंडेंसी हो जाता है। लोग अपना सब कुछ खो जाता है, वो डिप्रेशन में जाता है, सुसाइड कर लेते हैं। तो सर, आप भजन गाते गाते कोई ऐसे लोगों को इंस्पिरेशन दे अपने नौजवान यूथ के लिए कि सक्सेस में आपको एरोगेंस नहीं आना चाहिए, जैसे आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो, इतना प्यारा और अगर हार कुछ हो जाता है घटना जिंदगी में, तो उसमें मायूस, डिप्रेशन या सुइसाइड, ऐसे केसेस नहीं होना चाहिए। तो कैसे आप मोटिवेट करोगे सर अनूप जी? ऐसे केसेस हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे यदि मनुष्य ये सोच ले कि जो वो काम कर रहा है उसको पूरी लगन से करो। और भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि फल जो है मैं दूंगा, लेकिन तुम लगन से तो करो। जब मनुष्य लगन से काम नहीं करता है तब उसको उसका सही फल नहीं मिलता है। लगन से करने से मिलेगा ही। आप एक बॉल जो है वो जोर से दीवार की तरफ फेंकिए तो उसी पावर से वो पीछे आती है। आप धीरे से फेंकेंगे तो धीरे से आएगी। तब नौबत आएगी ये सोचने की कि यार ये तो मजा नहीं आया कुछ। तो आप जोर से पूरी लगन से अपना काम तो करिए, उस लगन से आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ये मेरा कहना है। So in effect, what you're really saying is, you have to have a passion for what you do, and you have to love what you do, and above all, you have to love your own life. Most importantly, that's बिल्कुल the basic thing. सर, चलते चलते मेरा फेवरेट भजन, पंडित जी का भी फेवरेट भजन, मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को बता दूं, पंडित जसराज जी की बात कर रहा हूँ। सुनिए। कभी कभी भगवान को भी, प्लीज। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु केवट की नाव चढ़े। क्या बात है साहब, क्या बात है। अनूप जलोटा साहब, थैंक यू so much for joining us from Dubai. So nice of you. Keep smiling, keep living, keep singing. We all love you very much. And you said you are 70 years old. You look not a day older than 25. चलते चलते एक जोक सुना देता हूँ। जी सर। गुप्ता जी गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा गुप्ता जी आपकी तबीयत बड़ी अच्छी लग रही है, पहले से सेहत बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे रहिएगा, पीना वीना बंद कर दिया ना? तो गुप्ता जी ने कहा मैंने बिल्कुल पीना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बंद कर दिया? कहते मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, कभी कोई बहुत रिक्वेस्ट करता है तो थोड़ा सा ले लेता हूँ। तो फिर डॉक्टर ने पूछा ये आपके साथ कौन आया गुप्ता जी? कहते इनको रखा है रिक्वेस्ट करने के लिए।
Really wonderful, really and truly wonderful talking to you, sir. Wonderful, absolutely wonderful. अनूप जलोटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. शुक्रिया. Thank you so much, sir. Great pleasure. And don't watch the cricket match. Don't watch it. Don't watch it right now. We're not doing that right now. But really lovely talking to you. Thank you so much, sir. Thanks. All the best. Thanks. God bless you, sir. Bye-bye. God bless you. Thank you. That was nice. That was really interesting. Fantastic. That was It's a fantastic- beautiful. Wow, so It's- cheerful, so lovely. Absolutely Exactly. wonderful. और मैं अपने दर्शकों को कहूँगा जो प्रदीप जी और मेरे साथ अनूप जलोटा साहब की जो कॉन्वर्सेशन हुई उसके बारे में अगर आपको कोई कमेंट्स भेजने हैं ज़रूर भेजें. We would love to read them out. And do keep sending in your comments. I mean,